অত্যাচার করছে। আর অত্যাচার করতে করতে সাহস যখন বেড়ে গেছে, তখন আজকে ভোটের লাইনে 4 জনকে গুলি চালিয়ে মেরে দিয়েছে। এই সেন্ট্রাল ফোর্স দিল্লির পুলিশগুলো মেরে দিয়েছে, এবং সকালেও একজন মারা গেছে, 5 জন মারা গেছে। এইটা সকাল থেকে শুনে আমার মেজাজটা একটু খারাপ আছে, আমার মন মেজাজটা একটু খারাপ আছে। এতগুলো লোক পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। এমনকি পঞ্চায়েত ইলেকশনেও আমরা একজনও পুলিশের গুলিতে মরতে দিইনি। আমরা পুলিশের গুলি চালিয়ে এখন আর মৃত্যুর ঘটনা আমাদের ঘটেই না। আর বিজেপির লোকেরা দেখুন নির্লজ্জ, লজ্জা করে না। ব্যারাকপুরে চিৎকার করে, ভাটপাড়ায় চিৎকার করে, বীজপুরে চিৎকার করে, জগদ্দলে চিৎকার করে, নৈহাটিতে চিৎকার করে, আপনার খড়দায় চিৎকার করে, পানিহাটিতে চিৎকার করে, কামারহাটিতে চিৎকার করে। অথচ দেখুন ওদের প্রধানমন্ত্রী যদি একটু লজ্জা থাকতো, আজকে বলেছে পুলিশ মেরেছে, পুলিশ না মেরে কোনো উপায় ছিল না। বুঝুন, একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী বলছে গুলি চালিয়ে ঠিক করেছে, মানে ক্লিন চিট দিয়ে চলে গেল। ওই শিলিগুড়িতে দাঁড়িয়ে মিটিং করে তিনি কিন্তু শীতলকুচিতে গেলেন না একবার, যেখানে 5 জনের ডেড বডি পড়ে আছে। তিনি ওইখানে দাঁড়িয়ে যারা গুলি চালিয়েছে তাদের ক্লিন চিট দিয়ে চলে গেলেন। এদের কোনো ক্ষমা হয় কি? মা ভাই বোনেরা, বিজেপিকে দেখে নিয়েছেন তো, একবার জিতেছিল লোকসভা নির্বাচনে। ব্যারাকপুরকে কি করেছিল? ব্যারাকপুর কনস্টিটিউন্সি, বীজপুর, ভাটপাড়া, জগদ্দল, ব্যারাকপুর কি মারপিট করেছিল? কত বোমাবাজি, কত গুন্ডাবাজি, কত অত্যাচার, কত মানুষকে পাড়া ছাড়া, মনে নেই? মনে আছে? তখনকার দিনগুলো কিন্তু আমি এসেছিলাম আপনাদের পাশে, সেটাও মনে আছে নিশ্চয়ই? মনে আছে? আমি আস্তে আস্তে এসে এসে আপনাদের ঘরে ঢোকাবার ব্যবস্থা করেছিলাম, সাহস জুগিয়েছিলাম। তাই এবারে মনে রাখবেন, একটি ভোটও ওদের দেবেন না, কোথাও না। না বীজপুর, না নৈহাটি, না ভাটপাড়া, না বিরাটি, না দমদম, না পানিহাটি, না জগদ্দল, না খড়দা, কোথাও নয়। বিজেপিকে তো দেশের বাইরে বের করে দেওয়া উচিত। এমন একটা রাজনৈতিক দল দেশটাকে ধ্বংস করে দিল। ভারতবর্ষের সবচেয়ে জঘন্য পার্টি, সবচেয়ে নগণ্য পার্টি। কয়েকটা গুন্ডা সর্দার নিয়ে এক হাতে ঝান্ডা, অন্য হাতে মোটা মোটা ডান্ডা, তিলক কাটা কয়েকটা পান্ডা, মহাপুরুষ নয় তারা, কয়েকটা গুন্ডা, তিলক কাটা কয়েকটা পান্ডা, আর মানুষকে প্রতিবাদ করলে মানুষকে মেরে করছে ঠান্ডা, নয় গুলি চালিয়ে করছে ঠান্ডা। এই তো বিজেপি। বিজেপি বলতে গেলে লজ্জা লাগে, ওর নামটা বলতে গেলে লজ্জা লাগে। 10 साल तक गरीबों को सताने वाले गुंडों पर, हत्यारों पर, लुटेरे तोलाबाजों पर दीदी को गुस्सा नहीं आया। लेकिन दीदी उन सुरक्षा बलों पर गुस्सा कर रही है जो बंगाल के लोगों के अधिकार की रक्षा कर रहे हैं। पंचायत चुनाव की तरह दीदी के गुंडे छप्पा वोट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दीदी नाराज है। अपने 10 साल के कामकाज का हिसाब किताब तो उन्होंने आपको कभी दिया नहीं। इस चुनाव में उन्होंने जाकर के बताना चाहिए था 10 साल में आपके लिए क्या काम किया। वो जहां जाती हैं बस मोदी को गालियां देती रहती हैं। उन्होंने हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाईपों के कारनामों का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अपने गुंडों के कारनामों का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हिसाब देती है क्या? देती है क्या? कोई जवाब देती है क्या? सिर्फ गाली देती है। अब वो अपनी रैलियों में अपने छप्पा वोट गैंग को ट्रेनिंग देने लगी है, ट्रेनिंग, और सिखा रही है। आप हैरान हो जाएंगे, एक राज्य की मुख्यमंत्री 10 साल सरकार में रहने के बाद
क्या सिखा रही है? वो सिखा रही है कैसे सुरक्षा बलों का घेराव करना है, कैसे सुरक्षा बलों को पीटना है और कैसे बूथ पर हमला करना है, ये सब बताया जा रहा है। अरे दीदी, ओ दीदी, देश के बहादुर सुरक्षा बल आतंकवादियों से नहीं डरते, नक्सलियों से नहीं डरते, तो आपके पाले पोसे गुंडों से, आपकी धमकियों से डरेंगे क्या? ये उत्तरी बंगाल, हमारे गोरखा समाज तो राष्ट्र रक्षा में हमेशा अग्रणी रहता है। उसका बहुत बड़ा अपमान दीदी आप कर रही है। उत्तरी बंगाल तो केंद्रीय बलों में नारायणी सेना बटालियन का सपना सच देखना चाहता है। दीदी, आप इस भावना का भी अपमान कर रही है। भाइयों और बहनों, एक पुरानी कहावत है, न दीने बाजूले आयता बार पनी बार छे। यानी जो कोई आपको कुछ अच्छा दे नहीं सकता, वो सिर्फ बहाने ढूंढता है। 10 साल दीदी को आपने पूरी ताकत दी। दीदी ने क्या दिया? क्या दीदी ने आपका पर्चा पट्टा दिया क्या? क्या दीदी ने आपका पर्चा पट्टा दिया क्या? दिया क्या? क्या दीदी ने चाय और सिनकोना बागानों में सही मजदूरी देना तय करवाया क्या? क्या दीदी ने वनवासी साथियों के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लागू किया क्या? किया क्या? क्या दीदी ने पहाड़ के विद्यार्थियों को सुविधा दी क्या? क्या दीदी ने DI फंड सिस्टम को खत्म किया कि नहीं किया? दीदी ने आपको सिर्फ अभाव दिया, भेदभाव दिया। लॉकडाउन के समय केंद्र सरकार ने जो मुफ्त चावल भेजे, मुफ्त चना भेजा था। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।